Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the topics of 14 April, starting with the first zero science. Zero science. It means geriatric and related to aging. Devised Daniel Belsky. He devised a novel blood test which determines the pace at which a human is aging. Hmm. Blood test. Further, the important thing I think from this topic is to know कि एजिंग कैसे होता है और क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड. The website also elaborates on this and states the healthy source of protein, healthy fat food, rich in antioxidant, healthy fat, vegetable oil, etc. that is needed, particularly to the age of people more than 60 years. Mm. All these multi-nutritive grains, wheat, rice, bajra, oils, fruits help in healthy aging. तो इसके बारे में दिया हुआ एजिंग के लिए सुटे जीरोजाइम called 15 PGDH, which naturally increases in muscle and with age and in neuromuscular disease. तो एक एंजाइम का नाम है इसमें. Further, this enzyme zerozyme can be modulated with the help of music, and even it also controls weight, health condition, stroke, high blood pressure, diabetic, cancer, boost your energy, and all that things. To zerozyme 15 PGDH, important enzyme which regulates and which helps in aging. उसके कारण blood bank, where the blood is stored, it reveals the true incidence of long COVID. तो कोविड के बाद टी सेल और बी सेल के कारण there is a presence of anti-nucleocapsid anti-N antibodies which indicates past natural infection. कोविड वैक्सीन जो होता है it is does not elicit the antibody, thus distinguishes the natural infection from the COVID-19 vaccination. इसका मतलब जो डोनर्स हैं दे हैव द एंटीबायोटिक टेस्ट और उससे पता लग सकता है कि उनको पहले कोविड हुआ है कि नहीं. एंड इंडिया में वी हैव ई रक्त कोश जो कि एक सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है. तो डिजिटली भी इट इज फंक्शनिंग एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है. ई रक्त कोश. हम्म. पेशेंट स्किन माइक्रोबियम को मे कॉज सर्जिकल इन्फेक्शन. अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, पेशेंट की जो अपने स्किन है उसके माइक्रोबियम कैन ऑल्सो कॉज सर्जिकल इन्फेक्शन. EPM bets big on India is more clean. India is already the second largest delivery center globally. EPM है क्या? कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है. डिलीवरी सेंटर की बात हो रही है. ठीक है. इट शोकेसेस द इंक्रीज इन द डिजिटल अवेयरनेस और डिजिटल पेनिट्रेशन
among the people. Why the text of amended tax treaty with Mauritius raised fresh concern? India's fourth largest source of FPI investment. मॉरिशस रिमेन्स इंडिया फोर्थ, मतलब मॉरिशस से एफपीआई इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट आते हैं. फर्स्ट यूएस, सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग से आते हैं. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, देन मॉरिशस. 3.25 लाख करोड़. और अभी 4.19 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली $50 billion, which is 6% of total FPI. अमेंडमेंट क्या हुआ था? इंडियन मॉरिशस साइंड अ प्रोटोकॉल एट पोर्ट लुइस डिमांडिंग डबल टैक्स अवॉइडेशन बिटवीन द टू कंट्री, टू नेशन. ये बात के it has included principal purpose test, which is in line with the global effort against the tax treaty abuse, particularly under the BEPS, मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग. जो भी कंपनीज शिफ्ट होते हैं इन द मॉरिशस या दूसरे लोअर टैक्स कलेक्शन, लोअर टैक्स रेट नेशन वहाँ शिफ्ट होते हैं, उनके लिए क्या है, उसी को बोलते हैं ना BEPS. मानसी, हाँ, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग इसी को बोलते हैं. जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल पेरेंट कंपनी है, आप वहाँ पे पैसा ट्रांसफर करते हो जो भी प्रॉफिट है, रेवेन्यू, सो दैट आपको एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे ज्यादा टैक्स लेवल, ज्यादा हायर लेवल पे, तो वहाँ पे ना पे करना पड़े. तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए यूज किया जाता है. These two nations have amended the preamble of the treaty to incorporate thrust on tax avoidance and evasion. Earlier objective was mutual trade and investment, लेकिन अभी eliminate double taxation without creating opportunity for non-taxation. एक इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है उसका मेन पर्पस क्या है, मतलब उसको वो जो टेस्ट कैरी आउट करने का है, तो वो ये बोलता है कि जो भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है उसके अंडर ये फर्स्टली तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट उसके अंडर फॉल करते हैं. और इसमें ये चेक किया जाता है कि जो भी टैक्स बेनिफिट्स अग्री किए गए हैं DTA के अंडर, अगर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का या जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें ये है कि आपको ड्यूटी बेनिफिट्स उठाने हैं, मतलब कि वही बात है कि अगर आपको एक तरीके से इसको भी आप मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको कम टैक्स पे करना पड़े, तो वो टैक्स बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे. टैक्स इवेजन और प्रॉफिट बेस इरोजन, प्रॉफिट शेयरिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, इसको डील करने के लिए लाया गया. हम्म. Applies to all income such as capital gains, demand, fees, technical service, सबके लिए. Regarding the first Indian election, many of the foreign press, I think, were criticizing. तो उसी के बारे में लिखा हो. India with remarkable efficiency has showed illiterate population has also shown its orderly behavior that is alive to its new responsibility. Unprecedented experiment in democracy. New York Times. If ever a country took a leap in the dark towards the democracy, it was India. इलेक्शन के बाद का बात है इसका मतलब. 8.5 crore adult women were given right to vote 1951. Irish Time लिखते हैं Indian election could be housewife choice. Going all out to please the women in the election manifesto choice of candidate and
मोस्टली जो 1951 से यूके एंड यूएस का जो गोल था कि इंडिया कम्युनिस्ट में नहीं बन जाए, तो देवर जो टारगेट स्टेट्स था वो मोस्टली सी पे विन, जहाँ पर सी पे जीत रहे थे। दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट rather than Nehru and Congress. Both Soviet Union and China were muted about the success of the CPI in the press. अलग अलग जगह भी हुआ, मलेशिया इंडोनेशिया में हुआ इलेक्शन, एशियन कंट्री में। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया 1952 में, इन दिस लैंड ऑफ हाई लिटरेसी एंड लो डाइट noted that many Indian language have no word which means election. फिर उसके बाद फिर लिखा गया इंडियाज एक्ट ऑफ फेथ, outer world will look at the result of the Indian general election with a mixture of wonder and concern. कि भाई ऐसा इलेक्शन हो भी सकता है कि नहीं. The wonder will come from the fact that such election could have been held at all. Ambala, Punjab में dozen of women voters removed the sandal before entering the polling booth, where they proceeded to pay obedience to the ballot box as if it were a god. तो ओवरऑल वेस्ट का कंसर्न ये रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इंडिया कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग उनके पास है कि नहीं, क्या है जो इंडियन है दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, वो रैशनल चॉइस ले सकते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द लीडर. ब्रिटिश स्केप्टिज्म का क्या था कि इंडिया जो है डिस्पाइट डाइवर्सिटी एंड साइज इट कैन नॉट पॉसिबली कैरी आउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन. जब इलेक्शन हो चुका तब फिर थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ बाकी सबका. और ये कैसे लोग आसानी से वोट ज़्यादा दे सके और इतना नेचुरल कैसे लगा इलेक्शन, तभी लगा क्योंकि उसके पहले प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था 1935 के बेसिस पर, 1946 में हुआ था नेशनल इलेक्शन, और उसके पहले गांधीयन मास मूवमेंट के अंदर में द पीपल वन आर रेडी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कंस्ट्रक्टिव फेज एंड लेटर ऑन सीडीएम फेज. और भैया इसमें आई हैड अ क्वेश्चन कि वाइल वोटिंग वोटर के माइंड में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए ताकि वो रैशनल सिलेक्शन करे लीडर का. जब पूछते हैं कि रैशनल सिलेक्शन करे लीडर का, तो हर एक वोटर के लिए वो डिफरेंट हो सकता है, उनके लिए रैशनलिटी डिफरेंट हो सकता है. लेकिन अगर जेंडर ट्रेंड देखा जाए तो क्या होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, उनका मैनिफेस्टो क्या दे सकते हैं सोसाइटी के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटी, सब चीज़ में अगर इन्वेस्ट करना बात कर रहे हैं वो वोट कर सकते हैं. कास्ट, जाति, रिलीजन, जेंडर से ऊपर हट करके जो कैंडिडेट इंटीग्रेटिव है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ही और शी डज नॉट कॉल एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, उसको वोट करना चाहिए. लेकिन हर के लिए रैशनलिटी डिफरेंट है. जो बहुत गरीब है उनके लिए हो सकता है सिर्फ उनको सही समय पर खाना मिले, सस्ते भाव में खाना मिले, इंश्योरेंस मिले, और पीएम आवास के अंदर में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मकान मिले, वही काफ़ी है. तो वी कैन नॉट क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर ऑल, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, उनके लिए रैशनलिटी डिफरेंट है. लेकिन ओवरऑल ये बोल सकते हैं कुछ कुछ एरिया में. थैंक यू. एंड करंटली जो इलेक्शन का प्रोसेस है इंडिया में उसके लिए क्या ऐसे रिफॉर्म सजेस्ट करोगे आप ताकि वो और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो सके. तो वी डिस्कस सच मेनी टाइप्स ऑफ रिफॉर्म. पहला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए लोकल लेवल पर रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी एमएलए, जिसके कारण और भी उनके पास क्रिमिनल केसेस द बैकग्राउंड में, उनका बात कर सकते हैं. सेकेंड, वीवीपैट आ चुका. थर्ड, साइमल्टेनियस इलेक्शन का बात होता है. इसमें फंडिंग से रिलेटेड बात होता है, कैसे फंड दिया जाए, स्टेट फंडिंग दिया जाए या डायरेक्टली आप
जिसको जितना वोट मिला उसके हिसाब से फंडिंग होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होना चाहिए, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड भी है तो पूरे पूरे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये कुछ हो गया फैक्टर। फिर पॉलिटिकल पार्टी शुड आल्सो कम अंडर आरटीआई, ये कुछ रिफॉर्म का पार्ट है। फिर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जो रूल है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको कैसे कर्व करे, वो भी एक रिफॉर्म का पार्ट है। एंड कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों तरीके से, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यस। तो कुछ कुछ जगह में इलेक्शन मैनिफेस्टो देखा है, वहां पर फ्री लाइब्रेरी फॉर ऑल। केरला में 27,671 गवर्नमेंट रन लाइब्रेरीज इन इंडिया, जिसमें से 7,800 सिर्फ केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में। ये दिखा है सदर्न स्टेट्स फोकसेस लाइब्रेरी ऑन। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बढ़ाता है, क्रिटिकल थिंकिंग और अच्छे तरीके हो सकता है लोगों का, डाइवर्स थॉट, क्रिएटिविटी, इसलिए रीडिंग प्रमोट किया जाता है चेन्नई में भी और साउथ में भी। इंडियन फुटबॉल मैप स्क्यूड, कुछ स्टेट्स का लिए जहाँ पर फुटबॉल ज़्यादा फोकस किया जाता है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, गोवा, इवन केरला। लेकिन जो इंडिया में टॉप फुटबॉल प्लेयर है 65%, दे आर फ्रॉम जस्ट 5 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल से, गोवा से, मणिपुर, पंजाब। फुटबॉल का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, पहली बात है कि जो खेलो इंडिया है उसके अंदर ही प्रमोट किया जा रहा है। फिर आईएसएल है, उसके द्वारा लीग किया जा रहा है फुटबॉल में, ताकि कॉर्पोरेट फंडिंग भी है, अवेयरनेस भी जनरेट हो, रेवेन्यू कलेक्शन भी हो, ब्रांडिंग भी हो। तीसरा जो एग्जिस्टिंग लीडर है फेमस, सुनील छेत्री और बाकी सब, उनको भी जोड़ा जाता है लोकल लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप या स्टेट लेवल में, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। जो कोचेज है उनको सैलरी दिया जाता है इन द स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद कैच देम यंग इनिशिएटिव है, कि आप शुरू से ही आप बच्चे को पकड़ लो एट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। फिर इसमें एनएसएस का भी रोल आता है, इसमें आता है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का रोल आता है, और नेशनल स्पोर्ट्स सेल जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो कुछ कुछ एरियाज हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो फॉरेन क्लब्स है उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके प्लेयर्स इंडिया में आएंगे, सिखाएंगे, खेलेंगे। इंडिया फिर अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप को वो इम्प्लीमेंट किए थे, फिर आने वाले समय में वो बात करें 2036 में फीफा वर्ल्ड कप करे। तो ओवरऑल बोला जाए तो धीरे धीरे स्पोर्ट कल्चर इन फुटबॉल इज इंक्रीजिंग, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स हो रहा है इंडिया में ओवर द लास्ट 10 years। सोनली फोकस ऑन क्रिकेट से हट के धीरे धीरे बाकी से जगह परकुलेट हो रहा है, तो इसमें फुटबॉल भी एक एग्जाम्पल। करंट हीट वेव, सी लेवल राइज पोज ए थ्रेट टू कोस्टलाइन। कोस्टलाइन से रिलेटेड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 रूल्स विच टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ कोस्टलाइन एरियाज, चाहे वो प्लांटेशन किया जाए, मैंग्रोव, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, इको टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कोस्टलाइन एरिया। कोस्टलाइंस जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो कम्युनिटीज है उनका घर कैसे रेट्रोफिट किया जाए, सब बात होता है उसमें। तो कॉन्करेंट हीट वेव, सी लेवल राइज, इट पोजेस टू कोस्टलाइन। कोस्टलाइन को अगर बचाना है तो 2-3 एरियाज हो गए जहाँ पर फोकस कर सकते हैं। पहला है कि सैंड, वहाँ पर ड्रेजरिंग ज़्यादा करते हैं, सैंड माइनिंग वहाँ पर भी होता है, तो वी हैव टू रिड्यूस दैट बिकॉज सैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोस्टल सिस्टम, और इट
creates a barrier to sea level rise. तो उसके लिए एक चेन्ड रॉक सिस्टम जो मुंबई सी शोर में उसको उसको यहाँ ला सकते हैं, स्टॉर्म ब्रेकर जिसको बोलते हैं। फिर स्टॉर्म वॉल हो गया, प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव्स, ये कुछ एरियाज जिससे हम सी लेवल राइज को मिटिगेट कर सकते हैं। Thin oil films enable water mixes sand surfactant. Surfactant free oil water mixture. इसका मतलब thin oil film observed onto the surface of water droplet leads to anomalous stable. इसमें लिखा हुआ है रादर देन कि अलग अलग रहना चाहिए ऑयल एंड वाटर को, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि सर्फेक्टेंट फ्री ऑयल एंड वाटर मिक्सचर वो स्टेबल होता है, इट अब्जॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। अलग होना मुश्किल होता है। WHO alert on viral hepatitis. Global hepatitis report. India accounts for 11% of the disease, second to China. अलग अलग जगह पर कुछ कुछ कंट्री में ज़्यादा है BNC, जैसे चाइना, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। मोस्टली दे आर फ्रॉम डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। 1.3 मिलियन डेथ होते हैं साल भर में, और मोस्टली हेपेटाइटिस बी 83% हेपेटाइटिस बी के कारण डेथ होता है। सी क्या बी इज हेपेटाइटिस, अगर बेसिक समझना है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कॉज बाय वेरियस इन्फेक्शियस वायरसेस नॉन इन्फेक्टिंग एजेंट। 5 मेनली स्ट्रेन होते हैं उसमें हेपेटाइटिस के, जैसे ABCDE, सब लिवर डैमेज करते हैं। दे ऑल कॉज लिवर डिजीज, लेकिन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इसका नाम है ABCDE। इलनेस सीवियरिटी डिफरेंट होता है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग एरिया में बांटा गया। टाइप बी एंड सी क्रोनिक डिजीज है, टुगेदर दे फॉर्म अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस लास्ट फॉर्म होता है जिसमें लिवर के ऊपर में जो फाइब्रोसिस होता है और काम करना बंद कर जाता है लिवर, इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। बोला जाता है 35 करोड़ लोग या तो बी और सी के साथ रह रहे हैं। इंडिया वर्नेबल है, लैक ऑफ अवेयरनेस, स्क्रीनिंग नहीं है, हाइजीन प्रैक्टिस नहीं है, हाई प्रेवलेंस है BNC का, एसिम्प्टोमेटिक रहता है इन्फेक्शन फॉर डिकेड्स, एसिम्प्टोमेटिक। अनडायग्नोस्ड केसेस उससे इन्फेक्शन बढ़ता है, ट्रांसमिशन बढ़ता है, नॉन वायरल डिजीज कारण भी हो रहा है, और नॉन अल्कोहल फैटी लिवर के कारण भी बढ़ते जा रहे हैं केसेस। ऑलरेडी लिवर डैमेज है तो और डैमेज हो जाते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, इसलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन होता है इंद्रधनुष मिशन के अंदर में। हेपेटाइटिस सी इज क्यूरेबल विद मेडिसिन, तो सी उतने घातक नहीं है, इसलिए 17% केसेस सी के और बी के 83% है, इसलिए बी को लाया गया है वैक्सीनेशन। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस आर कंपेरेबल टू ट्यूबरकुलोसिस, एडिंग दैट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अमंग द लोएस्ट इन इंडिया, इसलिए जेनेरिक मेडिसिन आसानी से ऑफर किया जाता है। इंडिया गवर्नमेंट इंक्लूडेड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इन द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2011-12, सबको मिलता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। ठीक है, टारगेट है कि BNC 80% जो लोग रह रहे हैं वहां तक पहुंचे, ये जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट निकला बाय द WHO। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इन्फेक्शन, एक्सटेंसिव केयर चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्राइसिंग डिस्पैरिटी है उसको कम करना चाहिए, डिलीवरी सेंट्रलाइज है उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, इंश्योरेंस सिस्टम भी लाना चाहिए, तब जाके जो एपिडेमिक है इसको एंड कर सकते हैं। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है IHR, इंटरनेशनल हेल्थ गाइड रेगुलेशन 2005 के अंदर में, WHO के अंदर में
वो बात करते हैं कि हर एक कंट्री मैंडेटेड है कि कुछ भी इन्फेक्शन होता है आप बताइए जा करके, सर्वेल करिए अपने डिजीजेस को। और पैंडेमिक ट्रीटी साइन हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोविड MERS नहीं आएगा, बाकी एरियाज भी आएगा जो इसमें एग्जाम्पल है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। द पैंडेमिक ट्रीटी इज इन द नेगोशिएशन। एंड सिर्फ हेपेटाइटिस A एंड B की वैक्सीन अवेलेबल है, बाकी किसी भी टाइप की नहीं है। A एंड B की वैक्सीन अवेलेबल है, बाकी किसी की नहीं, ठीक है। हाँ, C क्यूरेबल है, D और E क्योरेबल नहीं है वो, और E की वैक्सीन अवेलेबल है, बस चाइना के पास अवेलेबल है लेकिन वो। ठीक। ट्रेंड इन क्लाइमेट जूरिस्प्रूडेंस, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया अभी हाल फिलहाल कि सिटीजन हैव द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो लिंक बताए ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज में क्या है। क्लाइमेट चेंज मल्टी सेक्टोरल डायमेंशन है उनका इम्पैक्ट का। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट होता है, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके कारण ह्यूमन डिग्निटी लिबर्टी अफेक्ट होता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, दे बिकम रेफ्यूजीज, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण उनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज क्रिएट्स अ डाइवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, इसलिए ऐसे उनको आर्टिकल 21 और 19 के अंदर 14 के अंदर मिला। कंटेक्स्ट क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कैसे बचाया, उससे बात हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्लीड किया कि ओवरहेड लाइंस उसको मत रखिए, अंडरग्राउंड नहीं। लेकिन ऐसा तुम बोला गया कि इम्प्रैक्टिकल है, एक्सपेंसिव है, तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन वुड हिंडर इंडियाज रोड टू सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। तब फिर अलग एरिया में ऑलरेडी पहले से लेजिस्लेशन था, NGT एयर एक्ट 1981, EPA एक्ट 1986, NGT एक्ट 2010, WPA वाटर एक्ट 1974। लेकिन डिस्पाइट गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था विच टॉक्स अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सब जो बात हो रहा है ऊपर में, इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में पॉलिसी था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, लेकिन उससे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ था नहीं इंडिया के पास। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दिया गया था, स्टैट्यूटरी बोर्ड डायरेक्शन नहीं दिया गया था। नो सिंगल लेजिस्लेशन इन इंडिया विच रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कंसर्न। इसका मतलब ये नहीं था कि डज नॉट हैव एनी राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। कोर्ट हैव नोटेड दिस काइंड ऑफ थिंग, पहले भी था, लेकिन बस कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया इसको। ऑलरेडी ये राइट टू लिबर्टी और लाइफ इक्वालिटी के अंदर में था ही फ्रॉम द प्रियम्बल एंड डिराइव फ्रॉम द आर्टिकल 14 और 21, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बस बाहर रखा, क्योंकि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट ऑलरेडी MC मेहता जजमेंट में भी बोला गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। हर जगह से रहा है, लेकिन मोस्टली 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से अवेयरनेस बढ़ा है, और हर जगह क्लाइमेट चेंज को एक तरह से यूनिफॉर्मिटी और इसको एक नेशनल लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया गया हर एक कंट्री के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के कारण अवेयरनेस बढ़ा है लोगों के अंदर में, तो दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू लेजिस्लेट सच काइंड ऑफ रिफॉर्म इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो सुप्रीम कोर्ट हैव ऑलरेडी implemented environmental matters under the MC Mehta versus Union of India regarding the environmental action। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, इन्वायरमेंट के अलावा भी राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि इंडिया विल मेक मोर स्ट्राइड्स इन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजीज। उससे रिलेटेड जो हेल्थ इम्पैक्ट होता है इंडिया में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अभी हम लोग बात की सी लेवल राइज के कारण कैसे कोस्टल कम्युनिटीज पर इफेक्ट हो रहा है, तो उस पर भी रेगुलेशन बन सकता है, और अच्छे तरीके से EIA आ सकता है इंडिया में, इंसेंटिव दे सकते हैं मोर एंड मोर फॉर द कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल गवर्नमेंट इंडिविजुअल रिगार्डिंग द ब्लू क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट,
एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। नो द कॉर्पोरेट विल बिकम मोर एंड मोर कंप्लायंट विद द क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन। दूसरे सिटीजन दे कैन डिमांड राइट्स एंड द आर्टिकल 32। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण उनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुआ, उनका हेल्थ इम्पैक्ट हुआ, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुआ, तो उनको रेमेडी मिल सकता है अंडर द स्कीम। और हेल्थ इम्पैक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये हो सकता है आने वाले समय में इंश्योरेंस में भी आ जाए। हीट स्ट्रोक के कारण डेथ हुआ, इंश्योरेंस के अंदर में आ जाए, क्योंकि हीट डोम क्रिएट हुआ और इम्पैक्ट हुआ हेल्थ। तो तो जो ह्यूमन राइट्स है, इट हैज बिकम मोर वाइडेड ड्यू टू द एप्लीकेशन। हाउ द लॉ ऑन डिस्क्लोजर एसेट इवॉल्व। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या इसमें था कि मैंडेटरी एफिडेविट वही होना चाहिए दैट लीड्स टू द सब्सटैंशियल अमाउंट डीलिंग विद द पब्लिक गवर्नेंस, उसी में होना चाहिए। उसके अलावा बाकी जगह पर जरूरत नहीं है। नॉट एवरीथिंग शुड बी गिवन टू द पब्लिक, और पब्लिक को बताना चाहिए नॉट एवरीथिंग। डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए? क्रिमिनल बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेट लाइबिलिटी एक्सेट्रा, स्पाउसेज डिपेंडेंट, कहाँ से आप फंडिंग करते हो अंडर द आरपी एक्ट 1951। कॉन्सिक्वेंस क्या है? प्रेजेंट टर्म 6 मंथ के लिए प्रेजेंट टर्म अगर झूठ बोलेंगे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन कंसील छुपाएंगे, या जो बताया जाए वो बता नहीं रहे हैं, तो फाइन हो सकता है या 6 महीने के लिए प्रिजन भी हो सकता है आपको। कोर्ट का रूलिंग क्या है इसमें कि आपको पर्सनल लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बताना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली ऑन द सब्सटैंशियल नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द पब्लिक गवर्नेंस, उसी में आप बता सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर एवरी आइटम ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस इट इज ऑफ सच अ वैल्यू to be sizable in itself, it will reflect upon its lifestyle and would be interest to the voter. तो हर एक केस में डिफरेंट हो सकता है ये बात। तो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड कि हर चीज नहीं बताना चाहिए, ओनली विथ जो इम्पोर्टेंट है वोटर के लिए, जो उनका लाइफस्टाइल दिखाएगा एज अ पब्लिक ऑफिशियल, एज अ एथिकल वैल्यूज अपहेल्ड बाय द पब्लिक ऑफिशियल, वो दिखाएगा, वही बस वोटर के लिए। गार्जियन ऑफ द रेवोल्यूशन IRGC वी हैव डिस्कस कि एक तरह से पैरामिलिट्री बॉडी है विथ टॉक्स कि शियाइट रेवोल्यूशन कायम रहे, खोमेनी आयतुल्ला सिस्टम हमेशा से रहे, वो इन्फोर्स करते हैं शरिया कंप्लायंस इन द कंट्री फॉर बोथ द इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। शरिया पुलिसिंग भी करते हैं, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं, एंटी करप्शन भी चलाते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस भी चलाते हैं, और दूसरे दूसरे कंट्री में इट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ सच काइंड ऑफ शियाइट रेबल्स एंड शियाइट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल यूदी, हमास और बाकी सब हिजबुल्लाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका 1980-88 के बीच में इराक ईरान वॉर के समय में। इट हैज अराउंड 2 लाख ट्रेंड सोल्जर, रफली हाफ द साइज ऑफ द ईरान्स रेगुलर फोर्सेस। ईरान के अपने डिफेंस फोर्सेस अलग हो गए और ये IRCG अलग हो गया। ये बात करते हैं आइडियोलॉजिकल बैकिंग, आइडियोलॉजिकल पैरामिलिट्री बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अगर जर्मनी का बात किए तो SS स्ट्रॉम ट्रूपर और SS जो नाजी के थे वो हो गए कंपेरेबल टर्म्स में। नाजी के जो दूसरे थे जो आर्म फोर्सेस थे तो वो डिफरेंट हो गए। हिजबुल्लाह लेबनान, शियाइट मोबिलेशन इराक ईरान, सब जगह ये सिविल वॉर में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द ईरान इन्फ्लुएंस इन द सीरिया इराक सराउंडिंग रीजन। विक्टर ओरबन चैलेंज, विक्टर ओरबन हंगरी मल्टीकल्चरलिज्म के खिलाफ, नेशनलिज्म अगेंस्ट द ग्लोबल एलिट, नेटिविज्म, पॉपुलिज्म। वो बात करते हैं
EU के अगेंस्ट बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट सॉवरेंटी इन द EU, तो कुछ कुछ एरिया होगा। तो वी हैव कंप्लीटेड, तो मैं कर देता हूँ। टुडे वी हैव डिस्कस जेरो साइंस, साइंस रिलेटेड टू एजिंग, इंपॉर्टेंट एंजाइम जेरोजाइम 15 PGDH. It controls all the things that is required for the aging, weight, heat stroke, high blood pressure, healthy, तो सब चीज। ब्लड बैंक बताया जाता है इसमें कि इट इज प्रेजेंट, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, दिस टॉक्स अबाउट अ नेचुरल इन्फेक्शन। और इंडिया में ब्लड बैंक ई रक्त कुछ मैकेनिज्म थे जो E-Raktkosh, रक्त E-Raktkosh और blood banks are regulated by CDSCO in India. CDSCO इन इंडिया, And इसके अलावा CDSCO जो हर चीज रेड रेगुलेट करते हैं, इसका मतलब मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक, ड्रग्स in एक्सेट्रा। India we are having 3,840 licensed blood banks in India which are functioning, and blood donate करने के बाद it can be like safer for only 42 days, and it is stored at temperature range of 2 to 6 degrees Celsius. ठीक है। So 42 days के लिए it can be used. तो And रिगार्डिंग हमारी spleen is known as the blood bank of our body, जहाँ पे हमारा जो reserve blood है store किया जाता है, and ये एक organ है, कहाँ located है, abdomen के upper left side located है. ठीक है, अपर लेफ्ट साइड। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट अमेंड किए, जिसमें बात किया गया रिगार्डिंग द टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन रादर देन इन्वेस्टमेंट, उससे इट विल एलिमिनेट डबल टैक्स अवॉइडेशन। और दूसरा बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, इसके खिलाफ काम कर सकता है, जो न्यू टैक्स ट्रीटी साइन हुआ है बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया। और की फैक्ट, मॉरिशस इज द 4th लार्जेस्ट FPI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आफ्टर US, सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग। अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन आया है मॉरिशस। इलेक्शन हुआ तो इन सब वेस्टर्न कंट्री चाह रहे थे कि इंडिया डेमोक्रेसी रहे, CPI के अंदर नहीं जाए, कम्युनिस्ट नहीं बने, तो चाह भी रहे थे, नहीं भी चाह रहे थे, क्योंकि ज़्यादा तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या इंडिया बन सकता है, क्या पॉसिबल है, इलिटरेसी बहुत हाई है, क्या वोट कर सकते हैं, इलेक्शन करा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग इतना है उनके पास। लेकिन बाद में उनका नज़रिया बदल दिया। फुटबॉल मैप में देखा जाता है, कुछ कुछ स्टेट्स में ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है, फॉर एग्जांपल मणिपुर, वेस्ट बंगाल, वहीं से मोस्टली टॉप प्लेयर्स 65% ऑफ टॉप प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, गोवा। मैं डिस्कस कैसे प्रमोट करना है इस फुटबॉल को। हीट वेव और सी लेवल राइज के कारण दैट इज थ्रेटनिंग द कोस्टलाइन कम्युनिटीज या कोस्टलाइन एरियाज, तो कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, B इज प्रिवेंटेबल अंडर द वैक्सीन, जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में बी सबसे ज़्यादा के कारण डेथ होता है, 83% के कारण बी होता है, 17% रिलेटेड टू सी इज क्यूरेबल। और जो हेपेटाइटिस B, C, इसका ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डायग्नोसिस नहीं किया जाता, एसिम्प्टोमेटिक फॉर डिकेड तक पता चलता नहीं कि बॉडी में है। मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन के कारण भी है, चाइल्ड न्यूट्रिशन भी नहीं है, अल्कोहलिक लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के कारण भी होता है, बढ़ जाता है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कारण बढ़ जाता है। और मोस्टली हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। डिस्क्लोजर ऑफ एसेट, वी डिस्कस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर